پاکستان اور اردن کا دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ایوان صدر میں ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ حمایت کا اعادہ۔ has been a steadfast friend of Pakistan. Defense collaboration, educational partnerships, cultural exchanges, and people-to-people contacts. To present Your Excellency with the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda, which we hope will be a gift emblematic of goodwill, happiness, and many blessings. صدر آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی پروقار تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بھی شرکت۔ شاہ عبداللہ دوم نے صدر آصف علی زرداری کو اردن کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا۔ شاہ عبداللہ دوم کو اعزاز دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، علاقائی اور عالمی امن کے لیے خدمات کے اعتراف پر دیا گیا۔ صدر مملکت کو دیا گیا اعزاز پاکستان کے ساتھ اردن کی جانب سے گہرے احترام اور دوستی کی علامت ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ شاہ اردن کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دوم کا ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ۔ وزیر اعظم سمیت آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت کی بھی شرکت۔ شاہ عبداللہ اور معزز مہمانوں نے مشترکہ فائر اور پیشہ ورانہ مہارت کا مشاہدہ کیا۔ شاہ عبداللہ دوم نے مسلح افواج کی تربیت، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں اور اعلیٰ معیار کو سراہا۔ شاہ عبداللہ نے اردن اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں نمایاں خدمات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری اعزاز دیا۔ آج ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سربراہان حکومت کونسل ایس سی او میں دوسرا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہے۔ یہ معیشت، مالیات، تجارت، رابطہ کاری، کاروبار، سماجی و اقتصادی تعاون بشمول تنظیم کے بجٹ کے امور کے شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اجلاس کے موقع پر اسحاق ڈار ایس سی او ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ ماحول دوست معیشت کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوگا۔ ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جوان زی ڈونگ کی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چین کے سفیر کے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چین پاکستان کا وہ با اعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے: محسن نقوی۔ وفاقی آئینی عدالت کے دو مزید ججز جسٹس روزی خان، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے نئے ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری میں اسلام آباد ہائی کورٹ، آئینی عدالت کے ججز، لاء افسران اور عدالتی اسٹاف شریک۔ آئینی عدالت آج سے مقدمات کی سماعت کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے 3 بینچ تشکیل دے دیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور نئے قائد ایوان کے لیے سادہ اکثریت درکار ہوگی۔
عدم اعتماد کی کامیابی اور نئے قائد ایوان کے لیے 53 کے ایوان میں سے 27 ارکان کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی نے آزاد جموں کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,63,457 تک پہنچ گیا۔ ایس آئی ایف سی کے مؤثر اقدامات کی بدولت پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ۔ 31ویں ٹیکسٹائل ایشیا عالمی نمائش و کانفرنسز کا 22 تا 24 نومبر ایکسپو سینٹر لاہور میں انعقاد۔ چین، ترکی، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، امریکہ اور فرانس سمیت 15 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ 2000 سے زائد برانڈز کی شرکت بھی متوقع۔ پاکستان کی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی انڈسٹری کو فروغ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ٹیکنالوجی ہب بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن دنیا بھر کے ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین چیلنج بن گئے۔ دنیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے سلامتی کے خطرات اور معاشی دباؤ پر پاکستان کے موقف کی تائید۔ پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین کی طرح برطانیہ میں بھی پناہ گزین شدید چیلنج بن گئے۔ پناہ گزینوں کا نظام قابو سے باہر ہے اور ملک کو تقسیم کر رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن قوانین کو توڑتے ہیں، نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی حکومت کی مبینہ مداخلت پر نئے انکشافات۔ انٹرسیپٹڈ کمیونیکیشن میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اب بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر چکی۔ انتہا پسند ہندوتوا سوچ نے ریاستی اداروں کو زہریلا کر دیا۔ بھارتی حکومت بیرون ملک مخالف آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے خفیہ کارروائیوں میں ملوث۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل اور امریکہ میں ناکام حملے کا الزام بھارتی ایجنسیوں پر عائد۔ یہ سفارتکاری نہیں بلکہ سرحد پار دہشت گردی ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے بڑھتے ہوئے ریاستی تشدد پر فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، ماہرین۔ خالستان ریفرینڈم سے قبل سکھوں کی اوٹاوا کینیڈا میں بھارتی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے باہر کار ریلی۔ بھارتی مظالم کے خلاف کار ریلی میں بڑی تعداد میں سکھوں کی شرکت۔ خالستان ریفرینڈم ایک قانونی اور جمہوری عمل ہے۔ 23 نومبر کو خالستان ریفرینڈم کی اجازت کینیڈین حکومت کی طرف سے سکھوں کے جمہوری حق کی توثیق ہے۔ رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ پنو۔ لاہور میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بنانے کا بڑا منصوبہ۔ گلبرگ کے علاقے میں 3 ریچارج ویلز فعال۔ منصوبے سے زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ تمام گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز کی کیپیسٹی یومیہ 8000 گیلن ہے۔ پروجیکٹ کا آغاز لاہور سے جلد صوبے بھر میں پھیلا دیا جائے گا۔ واسطہ پنجاب کے تحت صوبے بھر میں گراؤنڈ واٹر ریچارج پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ گوادر میں تفریحی سہولت کی فراہمی کے لیے جدید عوامی پارک کا افتتاح۔ گوادر کو سرسبز، جدید اور ترقی یافتہ ساحلی شہر بنایا جا رہا ہے۔ جدید پارک شہری تفریح کے ساتھ ساتھ گوادر کے جدید انفراسٹرکچر اور ساحلی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ افتتاحی تقریب میں جی او سی اور ڈپٹی کمشنر گوادر کی شرکت۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار شفیع محمد شاہ کی 18ویں برسی۔ ورسٹائل اداکار شفیع محمد شاہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں میں اپنی لاجواب اداکاری سے ناظرین کے دل جیتے۔ 30 سالہ فنی سفر کے دوران انہوں نے 100 سے زائد اردو اور سندھی ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ شفیع محمد شاہ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ پاکستان کا سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں کلین سویپ۔ تیسرے میچ میں گرین شرٹس کی 6 وکٹوں سے کامیابی۔ سری لنکا 211 رنز بنا کر آؤٹ۔ پلیئر آف دی میچ محمد وسیم کی 3 وکٹیں۔ پاکستان نے ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ فخر زمان اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں۔ حارث رؤف سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے فاتح کپتان کو ٹرافی دی۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर मुबारकबाद। पूरी कौम को खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। टीम ने बेहतरीन महारत, जज्बे और टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। टीम मैनेजमेंट और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी मुबारकबाद। उम्मीद है कि खिलाड़ी आइंदा भी इसी जज्बे से कौमी परचम सर बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और शिकस्त। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स की इंडिया ए के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। इंडिया ए अंडर 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान शाहीन्स ने हदफ बासानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच मास सदाकत की शानदार कारकर्दगी, 2 विकेटों के अलावा 79 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली। मैच पीटीवी नेशनल पर बहरास दिखाया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका जिम्बाब्वे के दरमियान सह मुल्की T20 सीरीज का कल से आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें होंगी मद्दे मुकाबल। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल है। ढाका में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया प्लेऑफ। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जगह बना ली। तीसरे मैच में पाकिस्तान की टीम के मुकाबले में 10 गोल से कामयाबी। मोहम्मद सुफियान की डबल हैट्रिक। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड अगले साल 28 फरवरी से शुरू होगा। और इटली के यानिक सिनर का एटीपी फाइनल्स में अपने एहसास का कामयाबी से दिफा। ट्यूरिन इटली में खेले गए फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 हिस्पानिया के कार्लोस अल्कराज को दिलचस्प मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। सिनर ने अल्कराज के खिलाफ 7-6 और 7-5 से कामयाबी समेट ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। शाहरुख शफी की रिपोर्ट। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात के आज़म का आदा करते हुए अवामी सतह पर राब्तों को मरबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों, बिलखसूस मशरक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम और सलामती का भी जायजा लिया। मुलाकात में कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन की अहमियत को उजागर करते हुए इंसानी और तरक्याती शराकतदारी के फरोग पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के बाद अपने असूली मौक़िफ़ का अदा किया। उन्होंने फलस्तीनियों की किसी भी तौर पर जबरी बेदखली की मुखालिफत की। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को बाइसे फ़ख्र करार देते हुए दो तरफा ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला दोम ऐवान सदर पहुंचे तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मरकजी दरवाजे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों पर मुहित गहरे बरादराना ताल्लुकात का मजर है। इस मौके पर ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इलाकाई और आलमी अमन के लिए ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ में निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को शाह अब्दुल्ला दोम ने उर्दन का आला तरीन एजाज दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म के इजहार के तौर पर अता किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद।
صدر آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان عطا کیا. His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, is a visionary leader and a statesman of exceptional stature, who has championed the cause of moderation, justice, and dialogue amongst nations. His Majesty has been a steadfast friend of Pakistan. By virtue of his personal engagement, the bilateral relations between Pakistan and Jordan have been significantly strengthened across diverse fields, encompassing political and economic cooperation, defense collaboration, educational partnerships, cultural exchanges, and people-to-people contacts. نشان پاکستان کا اعزاز شاہ عبداللہ دوم کو شاندار قیادت، پاکستان اور اردن کے درمیان گہرے تعاون کے فروغ اور علاقائی و عالمی امن کے لیے ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. شاہ عبداللہ دوم کو عطا کیا گیا اعزاز حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے گہرے احترام، تحسین اور دوستی کی علامت ہے. اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہاشمی سلطنت اردن کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے سول ایوارڈ دی آرڈر آف دی بیجویلڈ گرانٹ کارڈن آف النہدہ عطا کیا. Our dear friend, His Excellency, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Friendly Islamic Republic of Pakistan, and to reaffirm the deep ties of friendship between us, as well as the excellent relations between our countries and peoples, to present Your Excellency with the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda, which we hope will be a gift emblematic of goodwill, happiness, and many blessings. صدر آصف علی زرداری کو اردن کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دونوں ملکوں کی گہری دوستی اور پختہ تعلقات کی تجدید کے اعتراف میں دیا گیا. پاکستان کی حکومت اور عوام شاہ عبداللہ دوم کی جانب سے پاکستان اور اردن کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم اور پاکستان کے ساتھ مسلسل اظہار یکجہتی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم نے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز اور ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس موقع پر موجود تھے. شہزادی سلمہ بنت عبداللہ دوم اور اردن کے سول اور عسکری حکام پر مشتمل وفد بھی ان کے ہمراہ تھا. انیس آوان رپورٹ کریں گے. گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن اسلام آباد کے دورے کے موقع پر شاہ عبداللہ دوم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سینئر عسکری حکام نے پرتپاک استقبال کیا. شاہ عبداللہ دوم کو GIDS کے ڈھانچے، صلاحیتوں اور مصنوعات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں پاکستان کی مقامی دفاعی پیداوار، ٹیکنالوجی میں جدت اور پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر روشنی ڈالی گئی. شاہ عبداللہ دوم نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ بھی کیا اور مسلح افواج کی مشترکہ مشقوں کا مشاہدہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے. آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت سمیت غیر ملکی معزز مہمان بھی موجود تھے. مشقوں میں پاک فوج اور پاک فضائیہ نے روایتی فضائی طاقت، مربوط مینوورز، اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتوں اور جدید ملٹی پرپز ڈرونز کے استعمال کا مظاہرہ کیا. شاہ عبداللہ دوم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کے اعلیٰ معیار اور عملی صلاحیتوں کو سراہا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اردن کے عوام کے ساتھ گہرے احترام اور محبت کے جذبات رکھتا ہے. یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کی مشترکہ خواہش کا مظہر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور علاقائی استحکام اور امن کے لیے مشترکہ وژن پر زور دیا. اس سے قبل شاہ عبداللہ دوم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرڈر آف دا ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری ایوارڈ عطا کیا. یہ ایوارڈ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار 17 اور 18 نومبر کو ماسکو میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اجلاس میں نائب وزیر اعظم پاکستان کی نقطہ نظر سے علاقائی اور عالمی امور پر بات کریں گے اور تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں گے. اس موقع پر وہ رکن ممالک کے رہنماؤں سے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ملاقاتیں بھی کریں گے. اجلاس میں SCO کے علاوہ منگولیا، بحرین، مصر، قطر، کویت، ترکمانستان اور مختلف بین الاقوامی اور علاقائی اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے.
ये इजलास SCO की फैसला साजी के लिहाज से दूसरा सबसे अहम फोरम है, जहां ममालिक के मुश्तरका फैसले और मुश्तरका बयानात जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीन के सफीर जॉन जी डोंग की मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर ताज़ियत की। दोनों अफ्रीकों ने सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में पॉपुलेशन काउंसिल के ताउन से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आबादी और मईशत एक दूसरे के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। हुकूमत चाहती है कि एक माहौल दोस्त मईशत के लिए काम किया जाए, जिसके लिए आबादी में मुतवाज़िन इजाफा नागुज़ीर है। और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रावांची ने पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा सियासी मुशावरत से कबल एजाज़ी मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सियासी मुशावरत की तैयारियों, अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ़ और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। 13वां पाकिस्तान ईरान सियासी मुशावरत आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलूच और ईरान के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर तख्त रावांची करेंगे। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। तकरीब हलफ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शरीक हुए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस के आगा पहले ही हलफ उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत अब तक वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ने हलफ लिया है। वफाकी आईनी अदालत आज से मुकदमात की समाअत शुरू करेगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने 3 रुकनी बेंच के सरबराह में 3 रुकनी बेंच जो हैं वो तश्कील दे दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच नंबर 1 में जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सैयद हसन असर रिजवी और जस्टिस के आगा, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जरदारी हाउस में राजा परवेज़ अशरफ और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बाद अज़ां पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर के अवामी मसाइल और उनके हल के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नए कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत यानी 53 के ऐवान में से 27 अरकान असम्बली की हिमायत दरकार होगी। मज़ीद तफसीलात मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। कानून साज असम्बली में अक्सरियती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दाखिल की गई तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत यानी 53 के ऐवान में से 27 अरकान की हिमायत दरकार है। कुल मिलाकर पीपल्स पार्टी के पास 27 अरकान हैं और सादा अक्सरियत से वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो उसके लिए इतने ही वोट दरकार है। जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मुमताज राठौर को कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद किया गया है। फैसल मुमताज राठौर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली के नामवर सियासी खानवादे से है। इनके वालिद साहब राजा मुमताज सिंह राठौर
ابتدا میں وکالت کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور ایک مرتبہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، اس کے علاوہ وہ آزاد کشمیر کے سپیکر رہے۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد مارکیٹ 16,306 تک پہنچ چکی ہے۔ اسی دوران مارکیٹ نے 2 نفسیاتی حدیں عبور کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اب تک 52 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 20 ارب روپے سے زیادہ رہی۔ SIFC کے مؤثر اقدامات سے پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں جدید ٹیکنالوجی فروغ پا رہی ہے۔ اسی حوالے سے 31ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسز 22 سے 24 نومبر 2025 لاہور ایکسپو سینٹر میں ہوں گی، جہاں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹیکسٹائل اور گارمنٹ مشینری نمائش ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر انتظام ہوگی۔ نمائش کا مرکزی موضوع ٹیکنالوجی قدر میں اضافے کا محرک ہے۔ نمائش میں 2000 سے زائد برانڈز کی شرکت اور ہزاروں تجارتی زائرین کی آمد متوقع ہے۔ ٹیکسٹائل ایشیا 2025 میں 15 سے زائد ممالک، جن میں چین، ترکی، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، امریکہ، فرانس سمیت دیگر ممالک شرکت کریں گے۔ پاکستان کی آئی ٹی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو فروغ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جدید مسابقتی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہب بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ یہ ایونٹ پاکستان میں ایک جامع پلیٹ فارم ثابت ہوگا جو صنعتی جدت اور کاروباری مواقع کو فروغ دے گا۔ SIFC کے تعاون سے صنعتوں میں ڈیجیٹل تبدیلی پاکستان کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو بھی مضبوط بنا رہی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن دنیا بھر کے ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین کی طرح برطانیہ میں بھی پناہ گزین شدید چیلنج بن گئے ہیں۔ برطانوی جریدے دی گارڈین کے مطابق پناہ گزینوں کا نظام قابو سے باہر ہے اور ملک کو تقسیم کر رہا ہے۔ اگر تارکین کے آبائی ممالک محفوظ ہو جائیں تو انہیں واپس جانا پڑے گا، چاہے ان کے پاس جائیداد ہی کیوں نہ ہو۔ پناہ گزینوں کو مستقل کی بجائے عارضی حیثیت دی جائے گی اور ہر 2 یا 28 سال بعد درخواست دینا ہوگی۔ دی گارڈین نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کو مستقل رہائش کے لیے 20 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی ہجرت ہمارے ملک کو تقسیم کر رہی ہے اور برادریوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن قوانین کو توڑتے ہیں، نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ رہائش اور مالی معاونت کو اختیاری بنایا جا رہا ہے تاکہ کام کرنے والوں کی امداد بند کی جا سکے۔ پاکستان میں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین دہشت گردی اور سمگلنگ جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر افغان شہریوں کی واپسی تیزی سے جاری ہے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی سرکاری اور حکومتی حکام کی مبینہ مداخلت پر نئے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ انٹرسیپٹڈ کمیونیکیشنز میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اب بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر چکی ہے۔ بھارت میں انتہا پسند ہندتوا سوچ نے ریاستی اداروں کو زہریلا کر دیا ہے۔ مودی امت شاہ قیادت کے دور میں بھارت ایک ذمہ دار اور جارح ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل اور امریکہ میں ناکام حملے کا الزام بھارتی ایجنسیوں پر عائد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سفارتکاری نہیں بلکہ سرحد پار دہشت گردی ہے۔ بھارت اب اپنی ناقدین اور اقلیتوں کو بیرون ملک بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے بڑھتے ہوئے ریاستی تشدد پر فوری نوٹس لے۔ بھارت بین الاقوامی دہشت گردی کی عام آچکا بن چکا ہے۔ کینیڈا میں 23 نومبر کو خالصتان ریفرینڈم سے قبل اوٹاوا میں سکھوں نے اپنی تحریک کے حق میں بھارتی ہائی کمشنر دنیش پٹانگ کی رہائش گاہ کے باہر بڑی کار ریلی نکالی۔ سکھوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی کار ریلی میں سینکڑوں گاڑیاں شامل تھیں جن پر خالصتان تحریک کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے
23 नवंबर को ओटावा की ब्लिंक स्टेट में खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त देने पर कनाडा की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम एक कानूनी और जमहूरी अमल है। कैनेडियन हुकूमत की तरफ से रेफरेंडम की मंजूरी सिखों के जमहूरी और पुरअमन इज़हार राय के हक की तौसीक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम बेल्ट और बुलेट के दरमियान एक वाज़ेह इंतखाबात है। बेल्ट सिख बिरादरी के जमहूरी हक के इजहार की अलामत और बुलेट भारत की दुनिया भर में जारी कत्ल गारत और धमकियों की मुहिम की निशानदही करता है। रवां साल मार्च में लॉस एंजलिस में मुनाकिद होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम के गुज़श्ता मरहले में तकरीबन 35,000 सिखों ने भारत से आज़ादी के हक में वोट डाले थे। भारतीय हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के बाहर कार रैली में बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम सिखों ने शिरकत की। इस रैली से ये जाहिर होता है कि खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब की आज़ादी के सियासी मुतालबे के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम सिखों की तरफ से अपनी ताकत के इजहार की मुहिम भी है। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें गाजा की सूरत हाल से, जहाँ सह्यूनी फौज ने गाजा में जारियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि मगरबी किनारे में भी 1 फलस्तीनी को शहीद किया गया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के नाबलूस पनाहगुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान नौजवान फलस्तीनी को शहीद किया, जबकि जंग से तबाह अल गजा में 2 रोज़ से जारी बारिश के बायस शदीद सर्दी से 79 मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी हठधर्मी जारी रखते हुए एक बार फिर नफरत अंगेज़ बयान दिया है कि किसी भी इलाके में फ़लस्तीनी रियासत की हमारी मुखालफत में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। गजा को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा आमन मनसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग होगी। करारदाद का मसवदा इसराइल और हमास के दरमियान सदर ट्रंप की सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद के लिए है, जिसके तहत गजा में अबूरी इंतजामिया और आर्जी बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस कायम की जाएंगी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में भी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर फायरिंग की, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजी मिशन ने संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और तमाम एटमी तनसीबात आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में काम कर रही हैं। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान मुल्क में किसी भी मकाम पर यूरेनियम की अफसूदगी नहीं कर रहा, ताहम पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इजराइल को खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने का जिम्मेदार करार दिया। बुलेटिन में एक बार फिर से अहम कौमी खबरें शामिल करते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में मुखैर हजरात के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सिर्फ शहरों में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक नहीं, देहातों में भी सेहत की सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। देहातों में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से शरह मात में इजाफा हो रहा है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मेरी गवर्नरशिप गरीबों, कमज़ोरों, लावारिसों और लाचारों की अमानत है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हरीपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएगी। हरीपुर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने इलाके के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस हल्के के लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ये ज़िला चूँकि यहाँ एक खुद साख्ता फील्ड मार्शल का जन्म हुआ, जिसने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया, अदालतों को करप्ट किया और फिर इस ज़िले पे इस तरह मुसल्लत हुआ कि आज पाकिस्तान तरक्की करके और ये मकबूजा ज़िला रह गया। इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान किया और काजी असद साहब की बनाई हुई बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस फॉर गर्ल्स किया। 10 मरले मुतासरीन के लिए कॉलोनी का ऐलान किया। नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला पंजाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बेटी बहू ने एक बड़ा हॉस्पिटल और एक स्टेडियम का ऐलान किया और ये तो इंशाअल्लाह ताला अभी इब्तदा है, अल्लाह मदद करेगा। हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि गंदफ के लोगों को 28 किलोमीटर रास्ता ज़्यादा तय करना पड़ता है। जिस तरह काला डाका में आपने एक ब्रिज दिया है, उन्होंने अपनी टीमें भेजी हैं, उसकी स्टडी शुरू है। अल्लाह मदद करेगा, इन अगले 3 सालों में उसका भी कहीं करीब हो जाएंगे। हम तो 2 नफल पढ़ के चल पड़ते हैं किसी दफ्तर में, या अल्लाह तू मदद करना। अब मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में अगर पसमानदा कोई जगह है तो वो हरीपुर है।
और हरीपुर की हकीकी आज़ादी 23 नवंबर है और इंशाअल्लाह ताला इसकी डेवलपमेंट का काम 23 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं कराची के, जहाँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आला सूबाई हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म कराची में न्यू शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतज़ार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन इफ्तिताही तकरीब की कार्रवाई और वज़ीर आज़म का खिताब नशर करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची पहुँच चुके हैं और कराची पहुँचने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। और रुकन कौमी असम्बली और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का रुकन शेख आफ्ताब अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे में ज़राई इनकलाब और किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम कर रही हैं। वो अटक में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे मरहले की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट ने मरी का दौरा किया और मॉल रोड, कार्ट रोड, जेंगा गली, सनी बैंक और जनरल बस स्टैंड की मार्केट्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान 3 फूड पॉइंट्स को नाक़िस इंतजामात की वजह से बंद कर दिया गया और एक कैश एंड कैरी को ज़ायदुल मयाद मसनूआत रखने पर भारी जुर्माना किया गया। सलमा भट्ट ने कहा कि सयाहों को मरी खुराक और ज़रूरी अशिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने करीमपुर में इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले के शहीद सैयद सज्जाद हुसैन शाह के अहल खाना से मुलाकात की, ताज़ियत की और वज़ीर आज़म का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि शहीद पैकेज के तहत ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर माली और समाजी मुआवनत फराहम की जाएगी और मुताल्लिका इदारों को हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खबर देते हैं आपको अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसे में मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शहदा ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी ताकि ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की और इख्तितामी दुआ में शामिल हुए। उन्होंने तबलीगी जमात के बुजुर्गों से मुलाकातें की और कहा कि तबलीगी जमात दीन के फ़रोग़, इस्लाह नफ्स और माशरती बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुल्क की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम और मौजूदा मुश्किलात से निजात के लिए तौहीद और सुन्नत की अमल पर जोर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की खुसूसी टैक्स रियायत का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जाएगा। खुसूसी कमेटी इजलास में उन्होंने बरामदात का काबिल अमल तरीक़ेकार तैयार करके आइंदा काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि टैक्स छूट का कोटा तमाम अजला में बराबर तकसीम किया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाक चीन तजारत में खुसूसी टैक्स रियायत दिलवाने पर वज़ीर आला की कोशिशों को सराहा। लाहौर में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद इकबाल नसरुल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मॉल रोड और इससे मुल्हिका तारीखी इमारत की बहाली, ताज़ीन और आइश और शहर की मजमूई खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने कहा कि लाहौर की तारीखी इमारत, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हमारा कीमती असासा और तहजीबी सरमाया है, जिनकी बहाली का अमल तेज़ी से जारी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि तामीर और बहाली के मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आवाम को मयारी और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है।
मुल्क में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू हो गई है। नेशनल EOC के मुताबिक ये मुहिम 17 था 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरे, रुबेले की वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 90 हाई रिस्क अजला में पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मजमूई तौर पर करोड़ों बच्चों तक हिफाजती वैक्सीनेशन पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मंडी बहाउद्दीन में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदराबाद ने DHQ अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर किरण अरशद के मुताबिक 17 ta 29 नवंबर तक जारी मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के 2,43,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए महकमा सेहत की फिक्स्ड और आउटरीच टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को करीबी मरकज से मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि ज़िले को खसरा फ्री बनाया जा सके। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने तमाम SHOs को कब्जा माफिया, मुनशियात फरोशी, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में तमाम थानाजात के SHOs के साथ अहम इजलास में IG इस्लामाबाद ने कहा कि अवामी मसाइल का हल और अमन व अमान का क़याम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि पेट्रोलिंग मौसर बनाई जाए, पुलिस की मौजूदगी नुमाया हो, हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जाए और इश्तिहारी और अदालती मफरूरान को गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज और IG पंजाब की हिदायत पर मियां वाली पुलिस ने हसास इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ सर्कल्स में सर्च ऑपरेशन किया। घरों और डेरा जात की तलाशी ली गई, जबकि पुलिस ऐप के जरिए वेरिफिकेशन भी की गई। सर्च ऑपरेशन में मियां वाली पुलिस और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। DPO के मुताबिक कार्रवाई का मकसद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का इनखिला, जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी और ज़िमनी इलेक्शन 2025 को पुरअमन बनाना है। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में इकबाल का नौजवान के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवानों और कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने अपने खिताब में अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी और शाहीन की अलामत पर रोशनी डाली और कहा कि नौजवान बुलंद इरादों और अपनी सलाहियतों पर यकीन के जरिए ही अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं। तकरीब में नौजवान मुकर्ररीन ने इकबाल के फ़िक्र पर मबनी तकारीर पेश की, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। डिप्टी हेड ऑफ मिशन एहसन नबील ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नौजवान के नाम पैगाम भी पढ़कर सुनाया, जबकि इख्तितामी कलामात में वेलफेयर अताशी नाज़िर शमजद ने कहा कि ऐसे फ़िक्री प्रोग्राम नौजवान नस्ल को अपनी शनाख्त और नज़रियाती वर्से से जोड़े रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ननकाना साहब के आवाम से किया गया इंतखाबी वादा पूरा करते हुए शहर के लिए नए सेवरेज सिस्टम के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिससे शहरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी मुतवक्का है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया की ये रिपोर्ट। हुकाम की तरफ से वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शजरा मनसूब को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ननकाना साहब में 30 साल पुराने और मुसीदा सीवरेज सिस्टम की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था। पंजाब हुकूमत की तरफ से शहरियों के दरीना मुतालबे पर नए सीवरेज सिस्टम मंसूबे के लिए 6 अरब रुपया के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। नए सीवरेज सिस्टम के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बहुत जल्द इस पर अमली काम का आगाज कर दिया जाएगा। पूरी सिटी में सीवरेज पाइप्स, टफ टाइल्स और पानी का निकास जो है ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम के तहत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। इस मंसूबे की तकमील से शहर में निकासी आपके दरीना मसाइल हल होने के साथ साथ सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने में भी आसानी होगी। शहरियों ने इस मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का बड़े शुक्रगुजार है, जो ननकाने के लिए 6 अरब रुपए का सीवरेज सिस्टम के लिए रकम अदा की है। पंजाब हुकूमत का ये मंसूबा शहर की खूबसूरती और तरक्की के लिए संगे मील साबित होगा। आलमी अहमियत के हामिल शहर ननकाना साहब में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत का ये मंसूबा काबिल साइश है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। गवादर में तफरीही सहूलियात की फahमी के लिए जदीद अवामी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर समेत आला अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि जदीद पार्क डिजिटल नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के विजन का हिस्सा है, जो गवादर की खूबसूरती और इसके साथ साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों के मयार ज़िंदगी में इजाफा करेगा।
گوادر میں تفریحی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پارک کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلدیہ چلتے ہیں ملتان، جہاں کہانیوں کے ایک جادوئی دنیا میں بچوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور الفاظ کے ذریعے خوابوں کی تعبیر پیش کی۔ کہانی گھر پروگرام میں ہر بچہ اپنی منفرد کہانی کے ذریعے حاضرین کو محظوظ کر رہا تھا۔ رپورٹ کریں گے فرحان مرزا۔ تقریب میں 60 سے زائد بچوں نے حصہ لیا، جنہوں نے اپنی پسندیدہ کہانیاں یاد کر کے پورے اعتماد سے سٹیج پر پیش کیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سٹیج میزبانی بھی بچوں نے خود کی، جو ان کی تربیت اور خود اعتمادی کی واضح علامت تھی۔ اس رنگا رنگ تقریب میں 300 سے زائد والدین، اساتذہ اور مہمانوں نے شرکت کی۔ بچوں کے بے ساختہ انداز، برجستہ مکالمے اور کہانیوں کی ادائیگی نے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ 1993 میں میں نے پہلی بار ملتان میں ایک کہانی گھر منعقد کیا تھا ایک سکول میں۔ آج کا جو کہانی گھر ہے یہ 327واں کہانی گھر ہے۔ آج ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی بچے کہانی سننا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ کلچر کو بلڈ کرنے میں سب سے زیادہ بڑا ایک ہیلپ کرتی ہے۔ یہ کہانی جو ہے نا انسان کو تخیل سے نکال کے نا عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بچوں نے اپنی کہانیاں پیش کیں تو ان کی آنکھوں کی چمک اور الفاظ کی معصومیت نے محفل کو سحر انگیز بنا دیا۔ میرے مما بابا نے مجھے کہا ہے کہ آپ کہانی پڑھیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ اعتماد ملتا ہے۔ کہانی اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے آج ہم کہانی سنانے کے لیے آئی ہیں۔ کہانی گھر نے یاد دلایا کہ بچوں کو موبائل سکرینوں سے ہٹا کر لفظوں کی روشنی میں واپس لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایسے پروگرام بچوں میں تخیل، گفتگو اور ادب سے محبت کو جنم دیتے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جو مستقبل کو روشن بناتا ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے ایک انوکھے اور منفرد مقابلہ حسن میں۔ جی ہاں، بہاول نگر کے علاقے زمان نگر میں ایک منفرد اور رنگا رنگ مقابلہ حسن سجایا گیا، جہاں ملک بھر سے آئے ہوئے فارمرز نے اپنی اعلیٰ نسل کی خوبصورت بکریوں کو لے کر ریمپ پر آئے گئے، اور اسی پر انہوں نے شائقین سے خوب داد بھی وصول کی۔ رانا فیصل رحمان کی رپورٹ۔ پنجاب بھر سے 150 سے زائد مویشی پال فارمرز یہاں اپنی خوبصورت تیار شدہ اور مختلف نسلوں کی بکریاں لے کر پہنچے۔ فارمر کی بھی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے، اور فارمر کا ایک وہ شوق بھی بڑھتا ہے۔ نمائش میں مکھی چینی، ٹڈی، بیٹڈی اور دیگر نسلوں کی بکریاں پوری تیاری کے ساتھ پیش کی گئیں۔ بکریوں کی واک، تراش، خراش اور چمکتا ہوا جسم فارمرز کی دن رات کی محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ بکریوں کی تیاری، چال اور سمارٹنس کو خاص طور پر ججز نے باریک بینی سے پرکھا۔ شائقین کی بڑی تعداد مختلف شہروں سے پہنچی۔ جو مال ہوتا ہے وہ ذمہ دار کی شان ہوتی ہے، سارے ذمہ دار اکٹھے ہوئے ہیں، سارے کسان بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو پنجاب کا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کامیاب فارمرز کو اعزازی شیلڈ اور پنجاب کی ثقافتی پگڑی دے کر سراہا گیا۔ یہ نمائش صرف ایک ایونٹ نہیں، یہ بہاول نگر کے مقامی لائف سٹاک کلچر کی نئی شناخت ہے۔ یہ ایونٹ ثابت کر رہا ہے کہ بہاول نگر میں لائف سٹاک کا شوق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، تحصیل کبیر والا کے موزہ چوکی ہراج بستی دیوانی لک میں فلاحی تنظیم کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے، تاکہ متاثرہ خاندانوں کو سرد موسم میں ضروری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندہ کلثوم بشیر احمد کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کبیر والا کے موزہ چوکی ہراج بستی دیوانی لک میں فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام سردیوں کے گرم بستر، گرم کپڑے، ادویات اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 50 بستر دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ادویات، کپڑے ہیں، ادویات ہیں، ملبوسات ہیں، اور یہ سیلاب متاثرین کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ پوری سردیوں میں ہمارا یہ پلان ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی سیلاب زدگان ہیں، ہم جتنی بھی مخیر حضرات کی امداد سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ اب دوبارہ اپنے گھروں میں مقیم ہونا چاہتے ہیں، جہاں ان کو بستر کی اور شیلٹر روم کی زیادہ اشد ضرورت تھی، تو ہم شکر گزار ہیں اس ٹیم کے جنہوں نے ہمیں یہ بستر پرووائڈ کیے۔ ان کو آباد کرنے کے لیے کچھ ایسی جماعتیں آئی ہیں جو ہم کو گرم بستر اور آپ اور بھی کچھ اعلان کر رہے ہیں جو ہم تمہاری مدد کو گھر شہر بنا کے دیں گے۔ صحیح معنی مستحقین
उन्होंने तोड़ी ना अपना हक पहुंचाया। इस टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्हें साड़ी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बिस्तरे दे रहे हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं सैलाब ज़दगान ने साड़ी बड़ी मदद की है, तो सर्दियां आने तो पहले न सन बिस्तरे दे दी। सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम की तकसीम के साथ साथ फलाही तंजीमों की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी मुतासरीन के दुखों का मुदावा साबित होगी। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। रावलपिंडी में तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद वसीम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हारिस रऊफ को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका की टीम 45.2 ओवर्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर्स ने टीम को 55 रन का आगाज दिया। पाथुम निसांका ने 24 और कामिल मिशारान ने 29 रन स्कोर किए। कप्तान कोसल मेंडिस ने 34 और सदीरा समरा विक्रामा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। पावन रत्ना याके ने 32 रन बनाए। Well done, Wasim Junior. Ball in. Oh, a dream delivery. पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम ने 3 विकेटें हासिल की। फैसल अकरम और हारिस रऊफ के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। पाकिस्तान job well done. 211 bowled out. Sri Lanka. पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 44.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हसीबुल्लाह 0 पर आउट हुए। फखर जमान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 55 रन बनाने के बाद कैच दे बैठे। उन्होंने 8 चौके लगाए। बाबर आजम 34 और सलमान अली आगा 6 रन बना सके। Goes hard and square. That's a strike and a half. Always on the cards. This might be out. Yeah, beautifully taken. That they don't give his bowled him. मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत ने जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए टीम को जीत से हमकिनार किया। मोहम्मद रिजवान 61 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने नॉट आउट 42 रन बनाए। And now they will thump down the ground. Hussein Talat takes the partnership. मोहम्मद वसीम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि हारिस रऊफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने फातिह टीम के कप्तान को ट्रॉफी पेश की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। गेम ऑन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर इजहार मुसर्रत किया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेज़ और मैनेजमेंट, बिलखुसूस चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिस अज़्म, मेहनत और टीम स्पिरिट का मुजाहरा किया है वो काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कामयाबी ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि टीम आइंदा भी इसी जज्बे और कारकर्दगी के साथ मुल्क व कौम का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि वेल डन बॉयज़, हमें अपने खिलाड़ियों, कोचेज़ और इंतज़ामिया की मेहनत और जज्बे पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि लड़कों पर भरोसा रखें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। हारिस रऊफ को मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाने पर खुसूसी मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में फ़तह पाकिस्तान क्रिकेट और हमारे शायकीन के लिए एक बेहतरीन लम्हा है।
ACC एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मैच PTV नेशनल पर बराह रास्त दिखाया गया। दोहा में खेले गए मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शाहीन्स की शानदार बॉलिंग के बायस इंडिया ए 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हुई। सूर्यवंशी 45 और नमन धीर 35 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अजीज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साद मसूद और माज सदाकत ने 2-2 जबकि उबैद शाह और अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ बआसानी 13.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सह मुल्की T20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी। इफ्तिताही मैच में मेज़बान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे की टीम ने दूसरे रोज़ भी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। क्रिकेटर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स भी की। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशिया प्ले ऑफ 3-0 से जीत लिया। ढाका में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 10 गोल से हराया और सीरीज 3-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान की जानिब से पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मोहम्मद सुफियान खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डबल हैट्रिक की। अब्दुल रहमान ने 2 जबकि नदीम अहमद, राना वलीद ने 1-1 गोल किया। सीरीज अपने नाम करने के साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड अगले साल 28 फरवरी से शुरू होगा। अब कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान के वसीम खत्री ने वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया है। घाना के दारुल हुकूमत अकरा में खेले गए इवेंट में वसीम खत्री ने 32 में से 22 मैच जीते, ताहम वो मामूली फर्क से फाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। टीम इवेंट में भी पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए चौथी पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ये अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। चैंपियनशिप में 28 मुल्कों के 200 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शेखुपुरा में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब हॉकी चैंपियनशिप रफीक हॉकी क्लब फारूकाबाद के नाम रही। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शेखुपुरा में खेले गए फाइनल में रफीक हॉकी क्लब फारूकाबाद ने पेस हॉकी क्लब को सख्त मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त दी। चैंपियनशिप में जिला शेखुपुरा के 12 रजिस्टर्ड हॉकी क्लब्स की टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के मैचेस नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर खेले गए। चैंपियनशिप के अख्ताम पर टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। लकी मरवत में अमनो अमान की हालिया सूरत हाल के बावजूद खेलों का जज्बा कम नहीं हुआ। ज़कोड़ी प्रीमियर लीग का फाइनल डेरा इस्माइल खान के मरवत ज़ल्मी और लकी मरवत के अलगाजी क्लब के दरमियान खेला गया। मजीद जानते हैं लकी मरवत से PTV के नुमाइंदा अनवर ज़ेब मरवत की इस रिपोर्ट में। ज़कोड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में 50 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में अलगाजी क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मरवत ज़ल्मी को 125 रन का टारगेट दिया, ताहम मरवत ज़ल्मी हदफ हासिल करने में नाकाम रहा और यूं अलगाजी क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी इलाके मरवत में बाबाए खेल के नाम से जाने वाले मारूफ शख्सियत रजा मरवत ने फातेह और रनर अप टीम्स में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। हम लोगों को साबित करवा रहे हैं कि लकी मरवत के अमन अमान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी तादाद में खेल को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह हमारे इलाका मरवत को आबाद रखे। हमारे इलाके में बहुत टैलेंट है, अगर हुकूमत थोड़ी तवज्जो दे तो इंशाल्लाह ये खिलाड़ी बहुत आगे जा सकते हैं। लकी मरवत में अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद फाइनल मैच में हजारों की तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की और मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुए, जो इस बात को साबित करता है कि लकी मरवत के लोग अमन पसंद है और बदअमनी खेलों की राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लकी मरवत। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। एक के ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त